Hello friends, welcome to the channel again. Guys, as you know, we have started with inequality and absolute value, and this is our fourth lecture for this concept here. Friends, right in the previous lecture, we had started with inequality and we did 7 to 8 properties, axioms, some facts, whatever you say. Guys, if you don't have remembered that one और अगर आप उसे नहीं समझे हो तो एक बार फिर से जाके वीडियो को अच्छे से रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिए एंड देन आप इस लेक्चर को बैठेंगे तो आपको चीजें आसानी से और भी समझ में आएंगी. सो गाइज वहां पे हमने कुछ दो क्वेश्चंस किए थे. वी वर गिवन x in the intervals and we are set to find 1 upon x and x square of them for particular values of x in the intervals. Now here we are going to continue with some more questions based on that. So guys, here we have next question. Find all the possible values of the following expressions. Expressions means what? This function f of x. So we are said to find all possible values of f of x, not x. X can be anything. We don't have to bother about that. We have to think about only what f of x. लेकिन आपको फिर भी पता है ना, f of x की वही वैल्यूज एक्सेप्ट किए जाएंगे जो डिफाइंड होंगे. मतलब x के वो वैल्यूज ही हम लेंगे जिनके लिए हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड हो. सो हमको फिर f of x इन तीनों ही कंडीशंस में गेट करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन. गाइस, एज यू कैन सी हियर, f of x is your 1 upon x square plus 2. Now just think about it guys. x square plus 2, इसमें ये जो x square है, x square is a value which is non-negative. That means it is always positive. It can never be negative. ये कभी भी negative नहीं हो सकता. So x square is always greater than or equal to 0. Okay. Therefore, x square plus 2, adding both the side 2, x square plus 2 is always greater than or equal to 2. Now therefore it means your x square plus 2 is greater than or equal to 2 and less than what? Less than infinity. You have to define it in proper way. That means आपको एक इंटरवल तो लिखना ही होगा कि आपका x square plus 2 पर्टिकुलर किस इंटरवल में आता है. सो ऑब्वियसली 2 से लेके इंफिनिटी. 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली किससे छोटा हो सकता है, मैक्स टू मैक्स इंफिनिटी से छोटा हो सकता है. नाउ गाइस, आपको क्या चाहिए, आपको 1 upon x square plus 2 चाहिए. सो हेंस we'll take the reciprocal of all. 1 upon x square plus 2, 1 upon infinity and 1 upon 2. Now guys, as you can see, you should go into the all properties there. एक बार आप उसे रिवाइज कर लीजिए, आपको वहां पे देखने को मिलेगा. Yes, here two things a and b in the interval both are having same sign. दोनों ही पॉजिटिव हैं. सो जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. आई मीन इफ a एंड b, आपका जो x है वो a और b के बीच है एंड a एंड b बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दोनों के पास सेम साइन है. सो इन दैट केस 1 upon a 1 upon b, सो जो आपका 1 upon x है यहां पे इनके बीच साइन चेंज हो जाता है. तो हियर ऑल्सो greater than or equal to and just greater than, and as you can see 1 upon infinity becomes what, equal to 0. Therefore this is what, this is your f of x belongs to 0 to what, 0 to this 1 upon 2. 1 upon 2 is what, greater than or equal to, so this will be closed and this will be what, opened. So f of x has maximum possible value will be in this interval 0 to 1 upon 2. Okay guys, ठीक है. आपको अगर इसमें थोड़ा भी डाउट हुआ होगा तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की तरफ. यहाँ पे हमको एक चांस और इस बात को समझने के लिए. So guys, यहाँ पे आपका f of x है 1 upon x square minus 2x plus 3. Again you can see it here like the previous question guys. See guys,
आपको इसको एज ए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो एक बार ध्यान से देखिए जरा, हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में हाउ टू कन्वर्ट दैट। इट्स वेरी सिंपल गाइस। आप यहां देखिए, ये जो आपका x है इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? 2 -2 है बट आपको चलेगा यहां पर डिवाइड बाय 2 करेंगे पहले आप। 1 you are getting, you will square this, whatever you are getting you will add and subtract, so this will become what? 1 upon x square minus 2x plus 1 minus 1 plus 3. Now guys, you can write this one as x minus 1 the whole square, as you know that a minus b the whole square is equal to a square plus minus 2ab plus b square. So hence x minus है तो minus and 1 the whole square, and 3 minus 1 becomes what? 2. And now as you can see it here in the previous question, as you did there, x square plus 2, here also it is x minus 1 the whole square plus 2. So similarly we can follow the process here. Yes friends, आपको f of x के all possible values चाहिए। So हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। x minus 1 the whole square, as you know that it's a perfect square value, so obviously this will be always greater than or equal to 0, and x minus 1 the whole square plus 2 will be always greater than or equal to 2. And now when you take the reciprocal of that, as you can see it here, greater than or equal to 2, so it is in between your x minus 1 the whole square plus 2 is in between greater than or equal to 2 and less than what? Infinity. So guys, when you take the reciprocal of this, 1 upon x minus 1 the whole square plus 2, 1 upon infinity, 1 upon 2, so obviously this sign will get changed because they have same sign, a और b दोनों के पास same sign है, that's why यहाँ पे inequality का sign भी change हो जाएगा। And as you know 1 upon infinity is equal to how much? That's 0. So this is your f of x. So hence your f of x belongs to, minimum value is what? 0. Maximum value is what? 1 upon 2. And since there is greater than or equal to at 1 upon 2, so it will be closed interval there, and here it will be what? Open interval. So your f of x has again the possible values of f of x is what? 0 to 1 upon 2. And similarly guys, here we do the third question. Yes friends, our third question is what? Third question is 1 upon x square minus x minus 1. And similarly, as we did in the second question, similarly we will follow the process over here. Yes, all of you will make the perfect square this one first. How will you make that? What is the coefficient of x here? It's 1. So that 1 will be divided by 2, and then it's square 1 upon 4. So we'll add and subtract 1 upon 4 here. So it will become x square minus x plus 1 upon 4 minus 1 upon 4 and minus 1. And again, as you can see, we can write this one as what? X minus, and this is 1 upon 2 the whole square, that's why 1 upon 2 the whole square. And what about minus 1 upon 4 minus 1? 4 ones are 4. Minus 1 minus 4 minus 5. Minus 5 upon 4. This is your function f of x actually. Now after this, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में किया, similarly will follow in the third question here. वैसे ही बिल्कुल, as you can see, your x minus 1 upon 2 the whole square is always greater than or equal to 0. Now when you subtract both the side by 5 by 4, again subtraction से, addition से numbers या sign change नहीं होता आपका inequality का, आपको पता है। So x minus 1 upon 2 the whole square minus 5 by 4 to the left hand side. 0 minus 5 by 4 will become minus 5 by 4. Guys, you can see it here. Minus 5 by 4 से बड़ा है और infinity से छोटा होगा obviously. So yes, we can write this. So friends, we can write this x minus 1 upon 2 the whole square
minus pi by 4, this value is greater than or equal to minus pi by 4 and less than what? Infinity. The maximum value will be what? Infinity here. Friends, now just think about it. आपका f of x क्या है? आपका f of x इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है. एंड गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट, ये जो वैल्यू आपका है ये एक्चुअली माइनस पाई बाय 4 से लेके इंफिनिटी के बीच आ रहा है, माइनस पाई बाय 4 से लेके इंफिनिटी के बीच आ रहा है गाइस. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, आपका जो f ऑफ x है वो इसका रेसिप्रोकल है. माइनस पाई बाय 4 और इंफिनिटी आप देखेंगे इसमें लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस पाई बाय 4 इज हियर, इंफिनिटी इज हियर, इन बिटवीन देयर इज 0. इट मींस a और b, a इज द लोवेस्ट इंटरवल, b इज द हाईएस्ट इंटरवल. गाइस यहां पे जो लोवेस्ट इंटरवल है, जो लोवेस्ट आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और राइट मोस्ट वैल्यू क्या आपका पॉजिटिव है. दोनों अपोजिट साइन में है, तो आपको लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी थी 8th प्रॉपर्टी, आपको वो यहां पे फॉलो करना पड़ेगा. और मैंने आपको सिखाया था कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. सो माइनस पाई बाय 4 टू 0 एंड 0 टू इंफिनिटी. सो गाइस आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे आप यहां पर, योर 1 अपॉन दिस वन, 1 अपॉन, so 1 upon x minus 1 upon 2 the whole square minus 5 by 4. Now reciprocal आप जानते हैं, this is actually what, this is your actually f of x, ये आपका f of x है. अब ये वैल्यू आपको कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, दिस बिलोंग्स टू, पहले तो यस ऐसे करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड में जाएगा. सो इट विल बी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, सॉरी माइनस 1 अपॉन 0, सो इट विल बी माइनस इंफिनिटी. एंड इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यस माइनस 4 डिवाइड बाई 5. यस बट डोंट फॉरगेट गाइस यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 इन्वॉल्व है, सो दैट्स वाई ये भी क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा. ओके नाउ यूनियन, और यहां पे कैसे करेंगे, यस 1 अपॉन इंफिनिटी विल बी व्हाट 0, कॉमा 1 अपॉन 0 विल बी व्हाट इंफिनिटी. सो एज यू कैन सी हियर गाइस, इंफिनिटी वॉज नॉट इन्वॉल्व, तो उसका 1 अपॉन इंफिनिटी भी 0 भी क्या रहेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, इंफिनिटी इन्वॉल्व हो जाएगा. सो हेंस योर f ऑफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. ऐसे थोड़ा भी इसमें डाउट है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं. यस हमने क्या किया, पहले हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को पहले परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट किया. ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये जो मिडिल टर्म है इसमें जो कोएफिशिएंट है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 4. अभी आप उससे ऐड करेंगे एंड सबट्रैक्ट करेंगे, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4. नाउ these three terms will make the perfect square a minus b the whole square. You can see it, x square minus x plus 1 upon 4 which is 1 upon 2 the whole square. So we can write this x minus 1 upon 2 the whole square. And what about this minus 1 upon 4 minus 1, 4 ones are 4, minus 1 minus 4 minus 5 upon 4. Yes, so we have to find the possible value of f of x, and your f of x is like this, जिसमें ये जो आपका है ये परफेक्ट स्क्वायर है. सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, द पॉजिटिव वैल्यू. हमेशा ये नॉन नेगेटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता कभी भी आपका ये. उसमें फिर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे माइनस पाई बाय 4, तो सबट्रैक्ट किया हमने वहां पे. सो मिनिमम वैल्यू क्या मिला आपको, माइनस पाई बाय 4, और मैक्सिमम ऑब्वियसली उससे बड़ा है तो इंफिनिटी आपका राइट साइड में जाएगा. सो यस दिस वैल्यू इज इन बिटवीन. लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस पाई बाय 4 और इंफिनिटी के बीच में 0 आता है, तो आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है हमने सिखाया था आपको वहां पे, आप वहां पे एक बार जाके फिर से प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से. यस आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, माइनस पाई बाय 4 टू 0, 0 टू इंफिनिटी, देन क्रॉस करके आप यहाँ पे आराम से रेसिप्रोकल निकाला यहाँ पर. सो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी क्यों, बिकॉज माइनस पाई बाय 4 नेगेटिव इस तरफ जाएगा, वो नेगेटिव रहेगा, तो उसके लेफ्ट और तो नेगेटिव रहेगा ही, सीधी सी बात. सो यस माइनस इंफिनिटी एंड कॉमा इसका रेसिप्रोकल माइनस 4 बाई 5 यूनियन 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी. सो गाइस ये आपका ये क्वेश्चन हुआ. हम चलते हैं. ओके फ्रेंड्स, हियर वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन. फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. अंडर रूट 9 minus x square, under root this. So it's a very different question guys. Just think about it.
सी आपको अगर कहा जाए कि आपको फंक्शन का पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करो, सो गाइस पॉसिबल वैल्यू विल बी रियल नंबर्स. Possible value of f of x will be the only real numbers. It cannot be imaginary or complex number. So you have to find your possible values of f of x in the set of real numbers. So guys आप जरा सोचिए यहाँ पर. Yes, think about it. Yes friends, think about it. If I take the first one as f of x, so मुझे f of x का possible value चाहिए. And remember, our function is always in real number, so we have to get it anyhow in real number set only. Complex number नहीं होना चाहिए. Now just think about it. अगर आपका ये x square minus 4 अगर ये नेगेटिव हो जाए, suppose x square minus 4 is minus 2 suppose. So guys it's imaginary. It will be complex number. It will belong to your set of complex number, not the real number. सो हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को नेगेटिव नहीं लेना है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो आपको एफ ऑफ एक्स के वैल्यू चाहिए, पॉसिबल वैल्यू चाहिए कि पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है. सो फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है, आप इसका मिनिमम वैल्यू फिर क्या ले सकते हो. येस 0. व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू 2, सो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 विल बी 0. 0 विल बी द मिनिमम वैल्यू, बिकॉज उससे नीचे आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो तो ले नहीं सकते. सो मिनिमम वैल्यू विल बी व्हाट 0. एंड आप उसके ऊपर कितना भी जाइए ना, सपोज आप यहाँ पे लेते हो 9, तो x का वैल्यू 9 लेते हो, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 समथिंग, उसका स्क्वायर रूट कुछ आएगा. यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x. आप x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए. पहली बात वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला, क्योंकि x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आप जानते ही हैं. सो येस इस हिसाब से देखा जाए, सो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है इन्फिनिटी. यस 0 इज इंक्लूडेड हियर. आप देख सकते हैं आपको 0 मिल रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 2 और माइनस 2. x का वैल्यू जब 2 या माइनस 2 होगा तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा. 4 माइनस 4 विल बी वॉट 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0. उसके बाद आप x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, इट विल गिव यू सम अदर वैल्यूज, उसका रूट कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इन्फिनिटी, बिकॉज कुछ भी मिल सकता है उसके बाद. हाँ लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम नीचे नहीं जाएंगे उसके. तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी होता है. व्हाट अबाउट सेकेंड वन गाइज हियर, या कंसीडर दैट एज, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पहले था, यहाँ एक्स स्क्वायर बाद में है. गाइज जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 से ज़्यादा लेते हो, अगर 9 से ज़्यादा लेते हो, तो सपोज आपने 10 ले लिया, एक्स स्क्वायर सपोज आपका 10 आ गया सपोज, तो इट विल बी 9 माइनस 10 विच विल बी माइनस 1, और वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर. समझ के ऑल ऑफ यू. नहीं, फिर से सुनिए जरा. यहाँ के केस में क्या था, आप एक्स स्क्वायर कुछ भी लेंगे, आप मैक्स टू मैक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो मिनिमम है उसको 4 ही लेना पड़ेगा आपको. एक्स स्क्वायर अगर 4 आएगा तब जाके ये 0 आएगा. अगर आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर उससे कम आया, एक्स स्क्वायर से कम मतलब सपोज 2 आया या फिर 3 आया, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 दैट विल बी नेगेटिव, तो नहीं लिया जा सकता. तो इसलिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है 4 हो जाता है. तो 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर रूट 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू फॉर द एफ ऑफ एक्स. और रही बात मैक्सिमम वैल्यू की, तो वो फिर कितना भी हो सकता है, आप लेते जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव है. तो बी केयरफुल. एक्स स्क्वायर मैक्स टू मैक्स 9 ही आप ले सकते हो, बिकॉज जब आप 9 लोगे तो मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगा 9 माइनस 9 0 का स्क्वायर रूट 0 विल बी द मिनिमम वैल्यू हियर. एंड येस एक्स स्क्वायर मैक्स टू मैक्स 9 ही लिया जा सकता है. येस तो अब उससे ऊपर नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या मिनिमम, यहाँ पे क्या ले सकते हो, फिर आप 0 ले सकते हो. 9 माइनस 0 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3. सो योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0,3 हियर. Similarly friend, third one, your f of x is under root of x square minus 2x plus 10. सो गाइज यहाँ पे दोनों ऑलरेडी एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर सामने से नज़र आ रहा था,
बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक दिख रहा है. सो क्वाड्रेटिक फंक्शंस कैन बी मेड एज अ परफेक्ट स्क्वायर, यू नो दैट हाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू लाइक दैट, पहले हम वो कर लेते हैं. सो x का कोएफिशिएंट 2 है, तो उस 2 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. सो विल गेट 1. अब इस 1 का स्क्वायर करेंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस 10. सो वी कैन राइट दिस फ्रेंड्स, ये जो आपका 3 टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म्स, वी कैन राइट दैट एज x minus 1 the whole square and 10 minus 1 is what? 9. Yes, this is what? 9 friends. Now your function f of x is what? F of x is under root x minus 1 the whole square plus 9. Now guys just think about it here. आपको f of x का मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा? गाइस आप जानते हो x माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आप जानते हो x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो सबसे मिनिमम क्या रहेगा, 0. तो ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर के लिए है, सबसे मिनिमम वैल्यू 0. लेकिन अंडर रूट में 9 भी तो है ना, तो आपका मिनिमम वैल्यू 0 प्लस 9, 9 उसका स्क्वायर रूट 3. सो 3 इज द मिनिमम वैल्यू फॉर f ऑफ x. ओके ठीक है, ये आपको मिल रहा है. व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू? कैसे आप जानते हो मैक्सिमम वैल्यू आपका x माइनस 1 द होल स्क्वायर का डिसाइडेड नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी लोगे, जो भी लोगे 9 उसमें ऐड करोगे फिर स्क्वायर रूट लोगे. सो गाइज यू आर गोइंग टू गेट एनी पॉजिटिव नंबर, आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा. सो हेंस वी आर राइटिंग हियर व्हाट, इन्फिनिटी. सो फॉर दिस योर f ऑफ x बिलोंग्स टू 3, इन्फिनिटी. सो गाइज ये आपका इंटरवल्स और इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक जो था वो आपका ख़त्म हुआ. नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जनरल मेथड of finding the solution of the inequalities. That is also called wavy curve method. That is also called Sridharacharya method. Guys, there we will find the solution of the complex inequalities there, very simple way से. So that is going to very important one and थोड़ा वो बड़ा lecture भी होगा. So be and come with the preparation, full preparation. अच्छे तैयारी के साथ आइएगा. ये चारों lecture अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एंड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे बार बार उसे दोहरा ली, खास करके ये वाला और इसके प्रीवियस वाला दोनों में ही, क्योंकि इनइक्वालिटी की बातें एक्सप्लेन की गई हैं. सो अच्छे से आप रिवाइज करके आएंगे तो हमको नेक्स्ट लेक्चर समझने में बहुत आसानी होगी. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.